Good morning, students. Let's continue our Unit 6, that is Social Responsibility of Business. So, under this topic, today we are going to discuss the case for social responsibility. What do you understand by the case for social responsibility? That basically is the reason why a businessman or any layman or any business firm should assume social responsibility. Why should they care for undertaking these social responsibilities? What may be the basic reasons for them to take care of their obligations towards the society? So we'll be studying that one by one. The first one is self interest. Every businessman, since we are uh, discussing this topic uh, under this business responsibility, social responsibility of businesses, otherwise, every person should fulfill the responsibilities towards the society. Not only business, but हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सोसाइटी की तरफ जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफ़िल करे. बट हम बिज़नेस के टर्म्स में इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो वी mainly like our discussion is mainly based on business firms. So the first one is self interest. सेल्फ इंटरेस्ट क्या होगा किसी बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने का? एवरी बिजनेस डिपेंड्स ऑन द पीपल. पीपल कौन है? जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनका बिजनेस रन कर रहे हैं. Be it a manufacturing unit or be it any kind of business, you depend on people, you depend on human resources who make it possible to run your business. तो अगर हम उनके इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे, उनके वेलफेयर का ध्यान नहीं रखेंगे, सो दे वोंट बी एबल टू गिव देयर 100%. वो पूरे दिल से काम नहीं करेंगे और हमारे बिजनेस का उस तरह प्रोग्रेस नहीं हो सकता. और कौन लोग हैं जिनका हमें ध्यान रखना है? द कंज्यूमर्स, आर कस्टमर्स. If we can't provide them good stuff in reasonable price, they won't be purchasing goods from us, they won't be dealing with us in the long run. So that is what we have to care for. So these are the people. Every successful business firm would definitely take care of the interest and the welfare of all the people who are concerned with it. That is, in their own interest, for running their business successfully, they have to care for all the people who are concerned with them. They have to care for the society in general. Next is creation of society. Business is responsible for creating a society. How business is responsible for creating a society? Because business utilizes resources of the society. What resources does it utilize? It may resources all the natural resources which are available online, or it may even utilize the human resources. लोग जो उनके स्किल्स हैं या उनके जो टैलेंट्स हैं, जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके हम एक बिज़नेस डेवलप करते हैं. बिना उनके उन सब रिसोर्सेज को, उनके टैलेंट्स को, उनके स्किल्स को, एबिलिटीज़ को चैनलाइज किए हम अपना काम नहीं कर सकते. एंड जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, सम ऑफ दैट इज़ अवेलेबल इन द नेचर. सो वी हैव टू यूटिलाइज ऑल दीज रिसोर्सेज एंड देन वी रन आवर बिजनेस. So that way we create a society. Business is a creation of society and it uses the resources of society. So therefore it should fulfill its obligations to the society. हम society से ही उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करके अपना कुछ जो सोसाइटी की नीड्स हैं उसी के बेसिस पे अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं. सोसाइटी से ही हम रिसोर्सेज अवेल कर रहे हैं. तो हमारा एक ऑब्लिगेशन होता है अपने सोसाइटी की तरफ जो हमें फुलफ़िल करना ज़रूरी है. अगर बिजनेसमैन अब सिर्फ अपने इंटरेस्ट में सोचेगा और सोसाइटी की डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं करेगा तो वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज सोशल पावर एंड सोशल इमेज. बिजनेसमैन हैव कंसिडरेबल सोशल पावर. जो बड़े बिजनेस फर्म्स होते हैं, बिजनेस हाउसेस होते हैं, उनके पास एक सोशल पावर होता है. सोशल पावर क्यों होता है? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट.
and they are even responsible for accelerating economic progress of the country and distribution of income among various groups. जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो उनकी जो इनकम होती है, जो उनकी लिविंग होती है, वो बिजनेस फर्म से प्रोड्यूस होती है, बिजनेस फर्म से मिलता है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनका एक इनकम जनरेट होती है और सोसाइटी में एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है. अगर बिजनेस अच्छे से डेवलप हो रहा है, सेल्फ सफिशिएंट है कोई कंट्री, फॉरेन गुड्स पे डिपेंड होने की बजाय वो उसके सारा सामान अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, उसके वहाँ जो लोग हैं वो उतने कैपेबल हैं, तो एक किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है इन सब चीज़ों से. उससे क्या होता है कि बिजनेस फर्म्स को एक सोशल पावर मिलती है. तो अब अगर कहीं पर कोई किसी को कोई पावर मिली है, वो तभी मिलेगी जब वो अपने सोसाइटी की तरफ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करेगा. If a person is thinking in his personal interest only, खाली अपने प्रॉफिट से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि लोगों को क्या उससे फ़ायदा हो रहा है, लोगों को एक्सप्लॉइट करके आप अपना सिर्फ फ़ायदे का सोच रहे हैं, तो वो पावर आपकी सीज़ हो जाएगी. गवर्नमेंट भी उसमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देगी कि आप फ्रीली अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक इन द टर्म्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू रन अ बिजनेस. पब्लिक इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए आपकी गुडविल एक सोसाइटी में क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है. जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, लाइक वी हैव सो मेनी प्लेयर्स इन द मार्केट हु आर डूइंग द सेम बिजनेस, बट जिनकी एक अच्छी इमेज है सोसाइटी में, जिनको लोगों को एक ये फेथ है कि दैट पर्टिकुलर ब्रांड इज़ प्रोड्यूसिंग goods of very good high quality, and they're selling it at reasonable prices also, which is affordable for all. तो उनका ऑब्वियसली जो टर्नओवर होगा वो ज़्यादा होगा. ऐसे बिजनेस फर्म्स का कुछ जैसे लाइक रतन टाटा, ही इज़ नोन टू बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन. वो अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. इवन इन दिस टफ टाइम ही हैज़ बिन वेरी जनरस टुवर्ड्स ऑल हिज एम्प्लॉयज़. एंड उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, टाटा के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर हाईली रिलायबल, ऑफ हायर क्वालिटी. तो एक गुडविल बनी हुई है उनके अपने एथिक्स की वजह से, बिकॉज ही इज़ फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स हिज पीपल, एंड ही इज़ अ बिग फिलैंथ्रोपिस्ट ऑल्सो, जो सोशल कॉजेज़ में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, जो जिस तरह के भी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम करते हैं. तो ही हैज़ अ वेरी गुड इमेज, सो दैट हेल्प्स इन रनिंग हिज बिजनेस in a good way. Social awareness, these days every person is quite aware. Customers जो हैं वो भी aware हैं, they want good quality products. उनको अब cheat करना आसान नहीं है. Otherwise every customer these days, because of technology, impact of technology, everybody has reach to judicial matters or all legal things on just the fingertips. कोई भी इंटरनेट की मदद से सारे वो एक्सप्लोर कर सकता है कि हम कैसे कर सकते हैं. गवर्नमेंट के भी बहुत सारे कंट्रोल हैं, कस्टमर केयर एंड ऑल दैट, राइट. सो उसमें अगर आप कोई भी बिजनेस में मेल प्रैक्टिसेस रखते हैं तो वो आपकी फ़ौरन पकड़ हो जाएगी. कस्टमर्स जो हैं वो अवेयर हैं, प्लस जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अपने राइट्स की अवेयरनेस अब हो गई है. पहले टाइम में क्या होता था कि जो ये ओनर्स होते थे बिजनेसेस के, दे वुड यूजुअली एक्सप्लॉइट देयर एम्प्लॉयज़, दे वुड पे देम वेरी लो वेजेस और उनसे बहुत ज़्यादा काम लेंगे और इस तरह से चीज़ें होती थी. बट अब चीज़ें बदल गई हैं. अब क्या है कि उनको भी अपने राइट्स की अवेयरनेस है, उनको भी पता है कि हमें कितने काम का कितना पैसा मिलना चाहिए, हमारे क्या राइट्स हैं, हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, हमसे कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं ले सकता विदाउट मेकिंग एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर दैट. एंड दे आर क्वाइट अवेयर अबाउट देयर राइट्स. तो अब उसको भी बिजनेसमैन को ध्यान में रख के अपना बिजनेस सेटअप क्रिएट करना होगा. अगर वो ये सोच कर करे कि बस मैं लोगों को एक्सप्लॉइट करके या मैं लो ग्रेड प्रोडक्ट्स का भी सेल कर दूं मार्केट में जिससे मेरा प्रॉफिट हो खाली, तो उसका बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर कोई इस सोच के साथ अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगा. नेक्स्ट इज
फ्री एंटरप्राइज, अगर कोई बिजनेसमैन, बिजनेस फर्म फेयर प्रैक्टिसेस नहीं रखेगी तो गवर्नमेंट भी उसकी फ्रीडम को सीज कर लेगी। वो उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत स्ट्रिक्ट चेक एंड कंट्रोल लगा देंगे, जिससे उनकी फ्रीडम, फ्रीली बिजनेस नहीं हो पाएगा। लाइक जैसे कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज़ वन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसके अंडर अगर कोई मैल प्रैक्टिसेस में लाइक एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग और एनी सोशल, एंटी सोशल practice, if anybody is indulged in any such practice, then the freedom of that enterprise may be seized. Next is law and order. Law and order means कि if you are not exercising fair control over your business practices, you are indulging in any sort of malpractice, then people may revolt. लोगों को अब आजकल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अपने राइट्स की अवेयरनेस है, वो लॉ का सहारा लेकर रिवोल्ट कर सकते हैं। उनको एक्सप्लॉइट करना इज़ नॉट दैट ईजी। एक अगर कोई बिजनेस फर्म या कोई बिजनेसमैन ये सोचता है कि वो अपने प्रॉफिट के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने ख़राब सामान प्रोड्यूस करके कस्टमर्स को चीट कर सकता है, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो बिजनेस रन करना पॉसिबल ही नहीं होगा। दिस विल रिजल्ट इन बिग chaos and it will threaten the survival of business. So it is very important to adopt fair practices for running a business. Next is moral justification. Business is a creation of the society, so it is very important to understand the demands, the needs of the society and to fulfill them. Next is we live in a very large country. Our country is very big, so we just can't depend on the government alone to fulfill all the requirements. जो भी social issues हैं हमारे, environment protection है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, हम इन सब को दूर करने के लिए, इन सब को इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए खाली गवर्नमेंट को नहीं रिस्पॉन्सिबल बना सकते कि ये सब चीज़ें हमें सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करे। हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी ज़रूरी है। Especially for the environment protection, you just can't depend on any one agency or any such organization कि आपको एक क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए और आप चाहें कि वो आपको दूसरा प्रोड्यूस करके दे। ईच एंड एवरी पर्सन who is a part of the society is responsible for creating a neat and a healthy environment around him or her. नेक्स्ट इज़ अदर इश्यूज़ लाइक इलिटरेसी। हमारा कंट्री इतना बड़ा है, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि गवर्नमेंट ही ऐसे स्कीम्स लाए, इस तरह के प्रोग्राम्स डेवलप करे जिससे इलिटरेसी दूर हो। हमारे कंट्री में लिटरेसी रेट बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हों, तो ये खाली गवर्नमेंट के करने से नहीं होगा। ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ टू अंडरटेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बिजनेस पीपल हु आर रिसोर्सफुल, दे शुड शो, दे शुड एड्रेस दीज काइंड ऑफ इश्यूज़। वो अपने बिजनेस का उनका एक मोटिव ये भी होना चाहिए, खाली उसमें ये नहीं होना चाहिए कि उनका अपना पर्सनल गेन, फिनेंशियल गेन और प्रॉफिट मेकिंग, बट उनका ये भी होना चाहिए कि सोसाइटी के इन सारे इश्यूज़ को भी एड्रेस करें। If they are able to create a nice society around them, then they can definitely run a business in a progressive manner. अच्छे से उस बिज़नेस को भी रन कर पाएंगे, क्योंकि अगर बिज़नेस जो है वो उसकी सक्सेस उसी पे डिपेंड करेगी। अगर जो उनके जितने लोग जुड़े हुए हैं, इफ़ दे आर अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, दे आर हेल एंड हार्टीज, हेल्दी हैं वो लोग, और लाइक अच्छे से उनका वेलफेयर का आप ध्यान रख रहे हैं, तो आपका बिजनेस पे भी की सक्सेस पर उसका असर पड़ेगा। अगर कोई लोग, हमारी सोसाइटी में सारे लोग बहुत ऑप्रेस्ड, बहुत परेशान और बहुत सारे लाइक बिल्कुल बीपीएल अंडर पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं, तो आपके बिजनेस कैसे ग्रो होगा? वो लोग जिनको अपनी लिविंग को सस्टेन करना मुश्किल होगा, वो कैसे आपसे आगे सामान खरीदेंगे, कैसे परचेस करेंगे? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बिजनेस जो सोशल इश्यूज़ हैं इनको भी एड्रेस करे। इलिटरेसी, पॉवर्टी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इसमें बिजनेस का भी कंट्रीब्यूशन रहे। इन सारे इश्यूज़ को बिजनेस फर्म्स, बिजनेस एंटरप्राइजेस अपने लेवल पर भी हैंडल करें।
So this is kind of moral obligation, and it is going to help them in their uh, uh, business progress also. Next is professionalization. Professionalization, earlier what would happen, the business people, business owners जो होते थे, they would नॉट बी वेरी प्रोफेशनल. किसी के पास पैसा है या फैमिली बिजनेस है, सिर्फ फिनेंशियल रिसोर्सेज की बेसिस पे कोई बिजनेस आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बट यू लैक दैट प्रोफेशनलिज्म, दैट यू लैक दैट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सो दैट विल नॉट एंश्योर द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस. और उनका क्या मोटिव रहता था, दे वुड जस्ट वांट देयर बिजनेस टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ मनी. उनका सिर्फ ये रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रिटर्न आता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रॉफिट होता रहे और बिज़नेस को वो एक्सपेंड करते रहे. बट अभी क्या ज़रूरी है कि अभी हमारा बिज़नेस एक प्रोफेशनल मैनर में, हम अपने जो मैनेजर्स बिज़नेस के जो हमारे हों, उनको पूरी प्रोफेशनल नॉलेज हो, well equipped home with all sorts of knowledge and skills to run the business in a successful manner. So these are the cases for social responsibility, and tomorrow we'll discuss the other topic. So this is all for today. Have a nice day, children.